वेलकम बैक टू माय चैनल। नेवर गिव अप पॉडकास्ट के थर्ड एपिसोड में एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। टुडे इन दिस एपिसोड आई एम गोइंग टू शेयर माय नॉलेज, माय एक्सपीरियंस about DevOps operations. What are DevOps operations? What are the different tools and technologies to handle different DevOps operations? And how you can grow faster by learning DevOps skills. If you are someone and you are feeling stuck, then this episode is really for you. मैं इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ हाउ बाय लर्निंग डेवऑप्स स्किल्स यू कैन ग्रो फास्टर। एज यू नो मी, my name is Imtiaz Khan. I am a software professional. I have a good knowledge in software development. I have developed multiple products from scratch. I was also a developer and get stuck with coding part. After that, I realized coding alone is not enough to grow faster in our career. And I started learning DevOps skills. So इस एपिसोड में बताने वाला हूँ कि कैसे मैं कोडिंग में स्टक था and without realization what are the other things to learn and grow. So stay tuned with me. I think you will get a lot of insights how you can grow in your career. Before get into detail about the DevOps operations, I would like to share my short story, like who I am and how I started my career journey. So basically, I belong to a small village. I did BCA. After completion of my BCA, I went to Delhi. After completion of my BCA, I was not aware like what are different career options, how to, find a job and what I will do after completion of my BCA. Then I interacted one of my friend and he was already settled in Delhi. Then I also settled with him and I started learning PHP. After 3 to 5 months of struggle, I started appearing in interviews. So I attended my first interview in Paytm, but I was not selected. At least I get to know like what are the different career options in software development. Then I started my career journey from software service-based companies. Parallel to my MSc Computer Science, I started part-time job. After completion of my MSc, I fully get into my job. After entering into the corporate, I was not aware about outside market. What is my actual value in market? After 8.5 years of experience, working experience with different organizations, I get to know I was underpaid. I was not getting what I deserve. That moment was the first a wake up call for me, a wake up alarm for me, what I was doing. And then I started finding some product based organizations. Then I work two startups. Jabong was my first startup where I worked 3.5 years. And after that, I joined Droom and I worked there 7.5 years. So I have a good understanding of software development. In service based companies, I just understood or learned how to write code. But when I get into product based organizations, I really understood how to write a good and quality code. One of the important lesson what I learned while working with the startups or product based companies, coding is not enough to build a scalable application. There are various tools and technologies which used to build a scalable application. Like I started learning what is Redis, what is Elastic, what is RabbitMQ, what is Kafka, and how to use these tools and technologies. But this is not only the story of me. Still, there are a lot of people who are not aware about the outside market. Still, there are a lot of people who are underpaid. Still, they don't know about their inner strength, what they are getting versus what they deserve. What most of the software professionals still doing, they learn one technology or one programming language and they get stuck with that for a long time. No, my friend, now time is changing. In coming years,
द कंप्लीट लैंडस्केप इज गोइंग टू चेंज। जो कोडिंग का तरीका है ना वो सब चेंज होने वाला है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ डेवलपर्स इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली। अभी जो हमारा जॉब, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो हमारा क्या है? कोडिंग करना, 8 घंटे कोड करना, राइट। बट अभी आप उस कोड को यूजिंग एआई टूल्स, यू कैन राइट दैट कोड विद इन हाफ एन आवर। जिसके लिए आप पूरे 8 घंटे अभी लगाते थे कोड राइट करने के लिए, अभी यूजिंग हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, एआई टूल्स, यू कैन राइट द सेम कोड विद इन आवर, राइट। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इससे। बट मैनी पीपल आर यू नो confused, or they are worried like AI is coming and our job is going to lost, मतलब हमारे जॉब जाने वाले हैं, हमारा करियर ख़त्म होने वाला है। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू थिंक इट इन ए पॉजिटिव वे। हाउ AI इज हेल्पिंग यू टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी, टू इम्प्रूव कोड क्वालिटी, ऑल दीज थिंग्स। AI से आपका करियर ख़त्म होने वाला नहीं है। Even AI is helping you to grow faster in your career. But how to use those tools or technologies effectively? This is the matter. It's depend on you. ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन AI के टूल्स को और टेक्नोलॉजीज़ को कैसे यूज़ करते हो फास्ट ग्रो करने के लिए इन योर करियर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे चेंज होने वाला है। जो एक डेवलपर का अभी जेडी होता है वो ये है कि आप 8 घंटे कोड लिखोगे तो आप 8 घंटे में इतने मॉड्यूल कंप्लीट कर सकते हो, राइट। बट अभी एवरी एम्प्लॉयर विल ऑल्सो अंडरस्टैंड यूजिंग चैट जीपीटी यू कैन डू द सेम कोड विद इन आवर, राइट। अब कोई पागल तो है नहीं, एम्प्लॉयर भी पागल नहीं है, उनको भी पता है कि चैट जीपीटी से आप उस काम को 1 घंटे में कर सकते हो। then why they will pay you for 8 hours, right? But they will think how to utilize your other skills, what they are paying for you, जो आपके लिए वो पे कर रहे हैं 8 घंटे के लिए, उसको what are the other skills you have, they want to utilize your other skills as well। और जो इस एपिसोड का जो मेरा पर्पज़ है वो यही है कि हाउ यू कैन लर्न अदर स्किल्स and how you can grow faster in your career। कोडिंग तो ख़त्म होने वाली नहीं है, it's obvious, but it's the JD is going to change drastically। अभी आपका सिर्फ जॉब था, हमारे एक डेवलपर का एक काम है वो सिर्फ कोड करना है, राइट। बट नाउ इन कमिंग डेज और कमिंग ईयर्स it's going to change, like what other skill set you have। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी जो BRD बनती है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, तो जो BRD बनती है वो काम है हमारे प्रोडक्ट मैनेजर का, isn't it? But now you can also build a BRD, so that kind of things going to change, like what other task you can do apart from coding। So this is serious issue, this is serious matter, like you have to think what other skills I have to learn to grow faster। अगर आप इसी उसमें बैठे रहे ना कि सिर्फ मुझे तो कोड ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा, then this is a serious issue। You have to change your mindset, like you have to learn new things। And why DevOps skills? Why I'm every time talking about DevOps skills? Because DevOps skills are related to you, your career। एक डेवलपर डेवऑप्स स्किल्स को बहुत अच्छी तरह से और आसानी से लर्न कर सकता है इजीली। एंड देन इफ यू लर्न डेवऑप्स स्किल्स देन यू विल हैव द एबिलिटी टू राइट कोड एज वेल एज हैंडलिंग डेवऑप्स ऑपरेशंस। देन व्हाई एनीबडी विल नॉट पे यू व्हाट यू वांट, इजंट इट? बट सिर्फ कोडिंग के बेस पर आपको अभी हाई पैकेज नहीं मिलेगा, that's your how to develop a product from scratch। And I developed multiple software products from scratch single-handed। So if I talk about like what are the different steps of software product development,
To develop a software product from scratch, we need to follow some steps. There are various steps to develop a product from idea generation to deployment. तो सबसे पहला कौन सा होता है? Idea generation. What startups do, they solve problems, right? If there is a problem, there is a solution. So every startup work on any problem, find out the problem, and then based on that how we can solve that problem, उसके बेसिस पर हम एक आइडिया जनरेट करते हैं, राइट? देन उस आइडिया को वैलिडेट करते हैं, मार्केट में रिसर्च करते हैं अगर उस टाइप का प्रोडक्ट कोई पहले से बना है या नहीं है. अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस बना हुआ है ऑलरेडी मार्केट में, देन दे थिंक अबाउट लाइक हाउ वी कैन मेक इट बेटर देन दैट, राइट? के बाद में प्लानिंग और स्ट्रेटेजी फेज आता है. उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं कि कितने इस प्रोडक्ट को और सर्विस को डेवलप करने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितने बैकएंड डेवलपर्स चाहिए, कितने फ्रंट एंड डेवलपर्स चाहिए, कितने प्रोडक्ट मैनेजर्स चाहिए, राइट? एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग. उसके बाद में आता है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फेज. जब ये आइडेंटिफाई कर लिया हमने, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स प्लानिंग, स्ट्रेटेजी बना ली कंप्लीट कि कैसे हम प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, जिसमें हमारा कि प्रोडक्ट का UI UX कैसा होगा, इतनी हमें APIs लिखनी पड़ेंगी, उसका UI UX किस टाइप का होगा, कौन कौन सी स्क्रीन्स होंगी. ऑल दीज आर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. स्टिल डिज़ाइन और डेवलपमेंट में कई सारी टीम इन्वॉल्व होती है कि जो दिस इज कंप्लीट प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट फेज होता है. अब आपका प्रोडक्ट डेवलप हो गया, नाउ इट्स रेडी टू टेस्टिंग, क्योंकि बिना टेस्टिंग के हम प्रोडक्ट को प्रोडक्शन पर भेज नहीं सकते. सो देन द टेस्टिंग फेज कम्स इनटू द पिक्चर. तो उसको हम डिफरेंट एनवायरनमेंट्स पे प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है. सबसे पहले डेवलपर यूनिट टेस्ट करता है एनवायरनमेंट पर. उसके बाद में एक इंस्टेंस और सर्वर हम बनाते हैं, QA सर्वर्स, जिन पर की QA टीम है हमारी जो वो उनको टेस्ट करती है. आफ्टर दैट स्टेजिंग सर्वर आते हैं जस्ट बिफोर द प्री प्रोड. प्रोडक्शन से जस्ट पहले स्टेजिंग आती है, प्री प्रोड बोलते हैं जिसको, उस पर टेस्ट किया जाता है. आफ्टर दैट आवर प्रोडक्ट इज़ रेडी टू लॉन्च. तो इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस में जो पूरी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर डेवऑप्स कम्स इनटू द पिक्चर. मतलब डेवऑप्स का रोल क्या होता है, डेवऑप्स कहाँ से स्टार्ट होता है, डेवऑप्स ऑपरेशंस क्या होते हैं. अब एक बार आपका डेवलपर का काम है, उसने डेवलप किया, कोड को कमिट किया गिटहब पर. आफ्टर दैट द डेवऑप्स जर्नी स्टार्ट्स. मतलब डेवलपर का जैसे ही काम फिनिश हुआ तो आपकी डेवऑप्स की जर्नी स्टार्ट होती है. हर डेवलपर ये सोचता है नाउ आई एम फिनिश, मेरा काम ख़त्म हो गया, अब ये डेवऑप्स का काम है. दिस इज ए मेजर प्रॉब्लम. ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. मतलब उस एक डेवलपर को लगता है कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, मेरा काम ख़त्म, अब डेवऑप्स टीम देखेगी सारा. एंड नो वन वांट्स टू लर्न अबाउट DevOps skills. That's the reason we struggle to answer the questions of like scaling, how to scale application, how to build a scalable application, how to build a fault tolerant application. Because वो एक कोडिंग से हम नहीं कर सकते. अगर हमें एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनानी है, फॉल्ट टॉलरेंट एप्लीकेशन बनानी है, तो उसको हम कोड से फॉल्ट टॉलरेंट नहीं कर सकते. काफ़ी हद तक हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, बट हम उसको फुली हाईली अवेलेबल नहीं बना सकते कोड से, राइट? तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं, और जिनसे कि हम अवेयर नहीं होते हैं, या अवेयर होते भी हैं तो हम थियोरेटिकल होते हैं, बट प्रैक्टिकली वी लेक. क्योंकि इंटरव्यूज़ में जब पूछा जाता है तो आप उसको आपको आर्किटेक्चर ड्रॉ करके हम बता सकते हैं कि अच्छा ऐसे हम हाईली अवेलेबल एप्लीकेशन बनाते हैं, ऐसे हम फॉल्ट टॉलरेंट एक सिस्टम या एप्लीकेशन बना सकते हैं, बट एग्जैक्टली we lack in practical, right? That's the reason of struggling most of the developers. Startups में काम करने के दौरान I closely work with various product managers where most of the developers was stuck with coding only. At that time I was learning other skills
other things with product managers, like how to develop a BRD, how to convert business requirement into product requirements, how to design wireframes. So based on my experience, I can say if you are a developer, always think positive, always work closely with your teams, product managers, marketing, sales, and other departments. And you work closely with some other teams, then you can learn a lot of things. I work on various POCs, how to do a POC, proof of concept, then how to launch MVP products, minimal viable products, right, in startups. So if you are really want to grow in your career faster, you must understand each and every step of product development. You just not need to stuck with just one skill, coding. Coding is just one single part of the complete product development. अभी तक हम डेवलपमेंट की आधी जर्नी को पार किया है, इसके बाद हाफ ऑफ द जर्नी इज स्टिल रिमेनिंग, क्योंकि जब तक हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा प्रोडक्शन पर, राइट, जब तक उसका देयर इज नो सेंस, हाफ ऑफ द जर्नी यू हैव कंप्लीटेड, राइट, आफ्टर दैट हाफ ऑफ द जर्नी इज स्टिल रिमेन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होती है, जिसको हम डेवऑप्स ऑपरेशंस बोलते हैं. बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट, नाउ इट इज द टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डेवऑप्स ऑपरेशंस, बिकॉज जो कोडिंग का लैंडस्केप है वो चेंज होने वाला है. यू हैव टू थिंक अबाउट लाइक टू लर्न अदर स्किल्स, एंड डेवऑप्स स्किल इज वन ऑफ द स्किल you can learn and you can grow faster. It might be difficult for someone who is learning the DevOps from the scratch. अगर कोई अपना करियर DevOps में स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है. But for you, if you are already working as a developer, doesn't matter full stack developer or backend developer, whatever it is. But if you are a developer, you know each and everything, right? आपको पता है, सारे स्टेप्स पता हैं आपको ये भी पता है डेवऑप्स ऑपरेशन होते क्या है. यू जस्ट नीड टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट दोज, जिससे कि आपके दोनों हाथों में लड्डू रहें, राइट. आपको कोडिंग आती है, एक हाथ में कोडिंग आती है, दूसरे हाथ में आपको डेवऑप्स स्किल्स आते हैं, देन देयर इज ए लेस चांसेस टू गेट आउट फ्रॉम द मार्केट. आपको अगर आपके हाथ में दोनों स्किल होंगे वो डरने की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, अगर आप सिर्फ कोडिंग पर डिपेंडेंट हो, then this is a serious issue. Now let's discuss about the key responsibilities of DevOps operations. DevOps operations की जो की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या होती हैं. आपने कोड कमिट किया, कोड कमिट करने के बाद में द एंटायर प्रोसेस इज हैंडल्ड बाय DevOps टीम एंड ऑल दोज ऑपरेशंस आर कॉल्ड DevOps operations. सबसे पहला जो काम होता है DevOps टीम का, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट. जो हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर वो क्या करते हैं, क्लाउड पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करते हैं. कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आपको उस पर इंस्टॉल करनी है, कितने साइज़ का आपको सर्वर चाहिए, अकॉर्डिंगली दे डिज़ाइन ए इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर वो रेडी करते हैं. फर्स्ट जो डेवऑप्स ऑपरेशन होता है वो ये होता है. देन सेकंड, ऑटोमेशन द टास्क. आपने कोड कमिट किया, अब उसको टेस्ट करना है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स पर, क्यू एनवायरनमेंट, देन स्टेजिंग, देन प्री प्रोड, देन प्रोडक्शन. अगर आप डेवऑप्स ऑपरेशंस को ऑटोमेट नहीं करोगे तो देन इट वुड बी चैलेंजिंग फॉर एवरीवन एंड इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. अगर आप ऑटोमेशन यूज नहीं करोगे, फॉर दैट CI/CD कम्स इनटू द पिक्चर. तो CI/CD से क्या होता है कि आपने कोड कमिट किया, ऑटोमेटिक कोड कैन डिप्लॉय ऑन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स सो दैट द QA टीम कैन इजीली टेस्ट द प्रोडक्ट. अगर आप ऑटोमेट नहीं करोगे, CI/CD नहीं बनाओगे, तो उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा आपका. हर बार आपको कोड को गिट से फेच करना पड़ेगा डिफरेंट एनवायरनमेंट्स पर, फिर उसको टेस्ट करना होगा. ये बहुत चैलेंजिंग होगा, राइट. सेकंड ऑपरेशन डेवऑप्स का क्या हुआ, ऑटोमेशन, बिल्डिंग द डिफरेंट पाइपलाइंस
to automate the process. अब आपका प्रोडक्ट डिप्लॉय हो गया सर्वर्स पर, उसका मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग आता है. दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑपरेशन ऑफ डेवऑप्स टीम. क्योंकि आपकी एप्लीकेशन सही से रन कर रही है नहीं कर रही है, कितने प्रोडक्शन कोई इशू तो नहीं आ रहा है, राइट. फॉर दैट monitoring and maintenance is play an important role. And after that, the one of the major and important factor is cost management. आपको पता है क्लाउड पर जो चार्जेस लगते हैं वो ऑन द यूजेज बेसिस पर लगते हैं. ये डेवऑप्स की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ इफेक्टिवली दे कैन मैनेज द सर्वर्स एंड कॉस्ट इन ए इफेक्टिव मैनर. ये डेवऑप्स प्रोफेशनल, डेवऑप्स का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कम से कम कॉस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रन कर सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट आर द एसेंशियल स्किल्स फॉर ए सॉफ्टवेयर डेवलपर टू लर्न डेवऑप्स स्किल्स. अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसको कि डेवऑप्स स्किल्स लर्न करने हैं या एक डेवऑप्स प्रोफेशनल बनना है, इफ़ यू आर ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड वांट टू बिकम ए डेवऑप्स प्रोफेशनल, और आप डेवऑप्स स्किल्स को लर्न करना चाहते हैं या डेवऑप्स प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, सो व्हाट आर द स्किल सेट रिक्वायर्ड टू लर्न. सबसे पहला आता है लाइनेक्स फंडामेंटल्स. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ लाइनेक्स कमांड्स. लाइनेक्स के बारे में आपको फंडामेंटली पता होना चाहिए. एंड नंबर सेकंड आता है गिट एंड वर्जन कंट्रोल. सो इसकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू नो हाउ टू यूज़ गिट एंड गिटहब. थर्ड है शेल स्क्रिप्टिंग टू ऑटोमेट वेरियस थिंग्स ऑन सर्वर्स. सर्वर पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ऑटोमेट करनी होती हैं. उसके लिए जैसे आप अदर लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, ऐसे ही एज ए डेवऑप्स प्रोफेशनल यू मस्ट अवेयर अबाउट शेल स्क्रिप्टिंग. इसके लिए काम यामल स्क्रिप्टिंग से भी किया जाता है. और आता है क्लाउड टेक्नोलॉजीज़. इसके बाद आपको क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, लाइक व्हाट आर डिफरेंट क्लाउड टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि AWS, GCP और Azure. These are three major cloud providers in the market, right? आपने किसी एक क्लाउड टेक्नोलॉजी में काम कर रखा है, then it's not much difficult to work in other cloud technology like GCP और Azure. उसके बाद आता है नंबर 5 CI/CD pipelines. क्योंकि DevOps is all about automation, right? तो उसके लिए आपको Jenkins is one of the open source tool which is used to design CI/CD pipeline. नंबर 6 आता है containerization application. कि using Docker we can develop any application using different containers, right? तो उसका हमें आपको पता होना चाहिए कि Docker को यूज़ करके हम कोई भी एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, कंटेनर्स को कैसे यूज़ करते हैं. इसके बाद नंबर 7 आता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स. सर्वर पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन और को मैनेज करने के लिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन टूल्स आते हैं, जैसे Ansible इज़ वन ऑफ दैम जो कि मोस्ट पॉपुलर है. अपार्ट फ्रॉम Ansible, Puppet, शेफ और सॉल्ट स्टैक कई सारे और भी हैं, बट Ansible इज़ वन ऑफ द पॉपुलर. 8 ऑर्केस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी लाइक कुबरनेटिस. कंटेनर्स का एक क्लस्टर कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. 9th आता है मॉनिटरिंग टूल्स. क्योंकि उसके बाद में मॉनिटरिंग इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ डेवऑप्स ऑपरेशंस. तो मॉनिटरिंग के लिए देयर आर डिफरेंट टूल्स आर अवेलेबल. मेथड्स एंड ग्राफाना आर मोस्ट पॉपुलर टूल्स. लर्निंग दीज टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आर नॉट डिफ़िकल्ट इफ़ यू आर ए सॉफ्टवेयर डेवलपर. ग्राफिक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं आप, यू नो वेरी वेल अबाउट द कोडिंग. सो द सिमिलर काइंड ऑफ ऑटोमेशन एंड कोडिंग इज यूज्ड इन डेवऑप्स ऑपरेशंस. You can easily learn these tools and technologies, and trust me, by learning these tools and technologies you can secure your future, your career. But होता क्या है ना, हम अपने आप को लिमिट करते हैं. मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लिमिट themselves. वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते. आप फुल स्टैक डेवलपर हो, दैट्स गुड. बट व्हाट अबाउट इफ़ यू बिकेम ए फुल स्टैक प्रॉब्लम सॉल्वर. कुछ साल पहले फुल स्टैक डेवलपर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, राइट? बट इन दीज डेज इट्स नॉट अबाउट फुल स्टैक डेवलपर. पीपल आर और ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग फॉर द कैंडिडेट हु आर फुल स्टैक प्रॉब्लम सॉल्वर्स. सिर्फ फुल स्टैक डेवलपर से काम नहीं चल रहा है अभी, राइट? आपको सब कुछ आना चाहिए. हाउ टू बिल्ड ए प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच.
आइडिया जनरेशन से लेकर डिप्लॉयमेंट से लेकर मॉनिटरिंग से लेकर ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नो। एंड इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फुल स्टैक प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आप अपने आप को एक फुल स्टैक प्रॉब्लम सॉल्वर बना लेते हो, देन हु कैन स्टॉप यू? नो वन कैन स्टॉप यू। आपको कोई नहीं रोक सकता। मोस्ट ऑफ द पीपल वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। क्योंकि अभी जो टाइम है ना, वो चेंज हो रहा है। आप सिर्फ कोडिंग के सहारे आप अपने करियर को सेफ और सिक्योर नहीं रख सकते। जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यू नीड टू लर्न अदर स्किल्स, एंड डेवऑप्स स्किल्स इज रिलेटेड टू योर करियर। ये आपके बिल्कुल करीब है। इफ़ यू आर ए फुल स्टैक डेवलपर और बैक एंड डेवलपर, it's not a big deal or big task to learn these tools and technologies, and which can secure your future, isn't it? So think about it. Thank you for tuning in. Mastering DevOps is a journey, not a destination. Subscribe my channel for more content related to career growth and all related to DevOps. Don't forget to like, share and comment below with your thoughts or questions. Till next time, keep learning and keep growing.